Hello my dear friends. Today our topic is multiplication and division of decimal numbers for class 5. Very simple, very easy topic. Look children, if we have to multiply a decimal number by a whole number, for example 0.3 multiplied by 3, we have to ignore the decimal point. Ignore it. भूल जाइए कि decimal point लगा हुआ है. You know only this 3 and this 3. 3 3s are 9. Now the point is before one number. Decimal part is only one number. This. So put a point before one number. This is the answer. We cannot start our answer from point. So we will write here 0. Now look, one more sum, 0.005 multiplied by 15. There is no need to multiply like this because you know table of 15 very well. If you don't know table of 15, then you can do 5 5s are 25, 5 here to carry. 5 zeros are 0 plus 2 2. 5 zeros are 0, 5 zeros are 0. Then starting from tens line, 1 5s are 5, 0 0 0. This. The point is before three numbers, 1 2 3 point. So 1 2 3 point. If you know the table of 15, then directly multiply 15 and 5. 15 5s are 75. Point is before three numbers 1, 2, 3. Here are only two numbers 1 and 2. So what will you do? We will put 1 0 and then put point. We cannot start our answer with point. So we will write 0 here. One more question. 1.001 multiplied by 96. 96 ones are 96. There is 0, so we will write 96 directly. 96 zeros are 0. 96 ones are 96. Point is before three numbers 1, 2, 3. So put a point 1, 2, 3. This is the story of point. If you know that 3485 multiplied by 16, answer is given. Answer is 55,760. Now the question is that where you will put the point if the point is here. Answer is this. Answer is 55,760. Now look at point. Point is before one number, so you will put the point before one number. Here. If our question is 3.485 multiplied by 16, answer is same 55760. Where you will put the point? 1, 2, 3. जितने नंबर से पहले पॉइंट चेक कीजिए, कितने नंबर से पहले पॉइंट? 3 नंबर से पहले पॉइंट. 1 2 3. 3 numbers से पहले point here. If the point is here 0.3485 multiplied by 16, answer is this same 55760. Check the point position 1 2 3 4 point 1 2 3 4. So we will put a point here point. This is the way to do your sum. If the point is on the both the side, 0.2 multiplied by 0.3. Both the sides are point. Both are decimal number. Ignore decimal number. Only see 3 and 2. 3 2s are 6. Point is before one number. So there are two numbers. But answer is only one. Write 0. Now they are two numbers. दो number बन गए point. Then 0.
Now our number is 0.5 multiplied by 0.4. Ignore this point. 5 4s are 20. Answer is 20. But point कहाँ लगेगा? एक नंबर से पहले पॉइंट, एक नंबर से पहले पॉइंट, टोटल 2 नंबर से पहले पॉइंट, 1 2 पॉइंट 0. One more big question I want to do with you, that is 3.4 multiplied by 23.6. Now we cannot do orally, we have to multiply properly. We will write big number upper side, smaller number डाउन साइड. 4 6 चेक करते जाइए क्या मैं ठीक कर रही हूं. चेक कीजिए, ठीक है, राइट. सेकेंड लाइन स्टार्ट विद 0. 3 6 यस. चेक, इज इट राइट? राइट. एड देम. 4 8 plus 4 12, 1 carry, 10 1 carry. Now where we put a point? Before one number, there are 2 numbers, so 1 2, point is here. Our answer is 80.24. Same type of question, one more question we will do. If the question is 1135 multiplied by 72, answer is already given 81,720. Main thing is where you put a point. If the question is 113.5 multiplied by 7.2, answer is this. आंसर आपको दिया हुआ है. मेन बात यह है कि पॉइंट कहां लगाएंगे. 1 नंबर से पहले पॉइंट, 1 नंबर से पहले पॉइंट, टोटल 2 नंबर से पहले पॉइंट, तो 1 2 पॉइंट हियर. वन मोर. 1.135 multiplied by 0.72. अब चेक कीजिए पॉइंट कितने नंबर से पहले है. 2 नंबर से पहले पॉइंट, 3 नंबर से पहले पॉइंट, तो टोटल 5 नंबर से पहले पॉइंट. 3 इधर, 2 इधर, तो 5 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है. नंबर हमारे पास दिया हुआ है 81720. चेक कीजिए 5 नंबर कहाँ है. 1 2 3 4 5 पॉइंट हियर. We cannot start our answer with points, so we will write here 0. This type of questions you have to practice more and more. Now how to find the product orally? 0.2 multiplied by 10. जितने 0 हैं उतने नंबर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड. 1 0 है, पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए. यहां से चला पॉइंट, यहां आ गया, ये पहुंच गया यहां पर. यहां था, यहां से 1 स्टेप चलेगा, यहां आ जाएगा 2 के बाद, तो ये बन गया 2 पॉइंट. ये 2 इज अ होल नंबर. सिर्फ 2 भी आंसर लिख सकते हैं या 2 के बाद भी पॉइंट लगा सकते हैं. 1.18 मल्टीप्लाइड बाय 10. अब देखिए पॉइंट यहां है, यहां से शिफ्ट होगा कितने कदम, 1 स्टेप, 1 कदम, यहां से चलेगा, यहां आ जाएगा, तो ये आंसर बन जाएगा 11.8. क्यों? क्योंकि पॉइंट यहां था, 1 कदम चलाना है, 1 कदम यहां से चलेगा, उठ के यहां आ जाएगा, तो ये पॉइंट यहां से चला, यहां आ गया. अब और देखिए 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100. अब हमारे पॉइंट कितने कदम चलेगा, 2 स्टेप्स. ये पॉइंट यहां है, 2 स्टेप चलना है, 1 कदम चला तो यहां आ गया, दूसरा नंबर ही नहीं है. दूसरे नंबर के लिए हम 0 लगा देते हैं. तो पॉइंट 1 से पहले था, 2 स्टेप चलना है, 1 2 यहां आ गया. इसके पीछे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं. वन मोर. 7.358 मल्टीप्लाइड बाय 100. कितने स्टेप पॉइंट चलेगा, 2 स्टेप्स. पॉइंट 3 से पहले था, यहां से उठेगा, चलो घूमने चलो, 1 2 यहां आ गया, तो ये बन गया 735.8. 3 से पहले था, 2 स्टेप्स चला, 1 2 यहां आ गया. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है. 71.821 मल्टीप्लाइड बाय 1000. अब 3 स्टेप्स चलेगा पॉइंट, 3 स्टेप्स, बिकॉज देयर आर 3 zeros. सो पॉइंट यहां है, 1 2 3 यहां आ गया.
तो हमारा आंसर बन गया 71821। पॉइंट यहां आ गया, चाहे यहां लगाएं चाहे नहीं लगाएं कोई बात नहीं। 45.01 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब पॉइंट कितने स्टेप चलेगा? 3 स्टेप्स। तो पॉइंट यहां से चला 1 2, ये तो 2 ही नंबर है। तीसरा नंबर कहां से लाएं? तीसरा नंबर लाने के लिए हम एक 0 लगा देते हैं। अब हमारे पॉइंट 3 स्टेप्स चलेंगे क्योंकि 3 0 है। तो पॉइंट 0 से पहले है यहां, तो पॉइंट चला 1 2 3, यहां पर आके रुक जाएगा। यहां पे हम चाहे पॉइंट लगाएं चाहे नहीं लगाएं कोई बात नहीं। तो डिवीजन वाली वीडियो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अभी कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे फिलअप्स हैं। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर? आंसर इज 15। तो देखिए पॉइंट हमारा यहां पे नहीं है, इसका मतलब यहां से गायब हो गया। एक कदम चला तो इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया है। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर? आंसर इज 500। 0.5 से पहले था, अब यहां पे पॉइंट नहीं है। एक देखिए कहां जा रहा है, 1 2 3 कदम। तो देखिए 3 स्टेप्स। फिर से देखिए यहां पॉइंट था, अब नहीं है। 1 2 3 यहां आ गया, तो 3 स्टेप्स चला तो 1000। नेक्स्ट नंबर इज 3.08 multiplied by which number? The answer is 30.8. Look, पॉइंट 0 से पहले था, अब पॉइंट 0 के बाद में आ गया। इसका मतलब सिर्फ एक स्टेप चला, एक स्टेप मतलब 1 0, तो आंसर आया 10। वन मोर क्वेश्चन, 0.001 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर? आंसर इज 1। हमारा पॉइंट देखिए इस 0 से पहले था और यहां पर सिर्फ 1 रह गया। इसका मतलब पॉइंट यहां आ चुका है। कितने स्टेप चला? 1 2 3। आप भी काउंट कीजिए मेरे साथ। 1 2 3, 3 का मतलब 3 0। तो 3 0 किस में होती हैं? 1000 में। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय विच नंबर? आंसर इज 80। पॉइंट 8 से पहले था, 8 के बाद एक 0 भी लगानी पड़ेगी, पॉइंट गायब है, इसका मतलब यहां है। तो कितने स्टेप चला? यहां था 1 2, 2 स्टेप्स मतलब 2 0। 2 0 किस में होती है? 100 में। दिस इज द वे। वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, इफ यू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर बाय एनी नंबर, प्रोडक्ट विल बी द सेम। अब यहां पर 6 है, यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे लगा दीजिए। इफ यू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर बाय 0, आंसर इज 0। याद रखिए 0 मल्टीप्लाई करते समय कभी भी आ जाए या डिवाइड करते समय कभी भी आ जाए, आंसर इज 0। अगर एनी डेसिमल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज द सेम। तो इसका मतलब 1 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 4.7 आया? इससे मल्टीप्लाई किया। ये हमारा ऑर्डर है। मैंने अभी बोला इफ यू मल्टीप्लाई एनी डेसिमल नंबर बाय एनी नंबर, आंसर इज सेम, नहीं। ये हमारा ऑर्डर है। ये ऑर्डर चाहे मैं फर्स्ट ऑर्डर पे लिखूं चाहे सेकंड ऑर्डर पे लिखूं। यहां पर 6 सेकंड नंबर पे है और यहां पर 6 फर्स्ट नंबर पे है। हमारा ऑर्डर सेम नंबर होना चाहिए। इफ 2 डेसिमल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड ईदर ऑर्डर, द प्रोडक्ट remains the same। और अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 0 से। इज इट क्लियर टू यू? इसी के अकॉर्डिंग आप सारे मल्टीप्लाई के सम कीजिए। डेसिमल की वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, उसमें आप डेसिमल चेक कीजिएगा कैसे करते हैं। Thank you very much. God bless you all. Work hard. Do practice more and more.